السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ الحمد للہ اللہ رب العزت کے فضل کی وجہ سے، توفیق کی وجہ سے سورۃ الفاتحہ کی تفسیر مکمل ہوئی۔ تو ایک مرتبہ دوہرا لیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان، نہایت رحم والا ہے۔ تو الرحمن اور الرحیم کے نام سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک حقیقی نام سے، دو صفاتی نام سے قرآن شروع ہوا ہے۔ تو پھر اللہ فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین، جو سارے جہاں کا پالنہار ہے، جو پالنے والا ہے سارے جہاں کا۔ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان، نہایت رحم والا، مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی ہم بندگی کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، بتلا ہم کو راہ سیدھی۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے فضل فرمایا، نہ کہ جن پر تیرا غصہ ہوا اور نہ وہ گمراہ ہوئے، جن پر نہ تیرا غصہ ہوا اور نہ وہ گمراہ ہوئے۔ تو یہ تو تھا ترجمہ۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تبارک و تعالی پوری کی پوری سورت کے بارے میں بولنے کی توفیق دیا، آپ کو سننے کی توفیق دیا۔ تو چند باتیں ہیں اس میں۔ سب سے پہلی چیز ہے حمد۔ کیا ہے؟ حمد۔ حمد کے معنی تعریف کرنا، تعریف، حمد مصدر ہے۔ تو تعریف کرنا، تعریف، اسی حمد سے ہمارے نبی کا نام بھی بنا ہے۔ ہاں میم دال کو الف لگا لے تو احمد ہو گیا، ہاں میم دال کو میم لگا لے تو محمد ہو گیا۔ احمد صلی اللہ علیہ وسلم جو پوری کائنات میں سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والے ہیں، احمد۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کی تعریف پوری کائنات کرے گی، جن کی تعریف کی جائے گی، جن کی تعریف پوری دنیا کرے گی، کب تک؟ میں تو بول دیا تھا میدان حشر میں اٹھنے تک، قبروں سے اٹھنے تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف چلتی رہے گی، ہر بات سب میں۔ تو حمد، تعریف، تو اللہ لایا الحمدللہ، سب تعریفیں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، جو کیا ہے؟ سارے جہاں کا مالک ہے۔ تو تعریفیں اللہ کی کیوں خاص؟ سب تعریفیں اللہ کے لیے کیوں؟ تو حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی بے شمار نعمتیں ہیں کہ اگر انسان اسے گننا چاہے تو گن نہیں سکتا۔ خود حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ قرآن کی ایک آیت بھی لکھ کر رہے ہیں کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ ہاں، تو کتنی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو دیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں خود انسان کے اندر خود موجود ہیں۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اللہ خود فرماتی کہ تم اپنے آپ میں غور کرو، معلوم ہو جاتا ہے کہ میں کتنا زبردست قدرتوں کا مالک ہوں۔ دیکھو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ دو چیزوں سے بنایا ہے، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ روح سے بنایا ہے اور ایک اللہ تبارک و تعالیٰ جسم سے بنایا ہے۔ اس سے پہلے حضرت فرماتے ہیں دیکھو ایک ہے عالم اصغر، ایک ہے عالم اصغر، ایک ہے عالم اکبر، ایک ہے بڑی دنیا، ایک ہے چھوٹی دنیا۔
देखो इंसान का जिस्म आलम असगर है। क्या है? आलम असगर है। ये दुनिया आलम अकबर है। क्यों? इंसान का बदन जमीन की मिसाल। किसकी मिसाल? जमीन की मिसाल। जिस तरह जमीन में फल भी उगते हैं, फूल भी उगते हैं, तरकारियां भी उगते हैं, इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला इंसान के जिस्म में बाल भी उगते हैं। अल्लाह तबारक व तआला रखा है बाल उगते हैं हमारे जिस्म से, तारे बासन में। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला हड्डियों को बनाया है हमारे जिस्म में। क्या बनाया है? हड्डियों को बनाया है। तो ये पहाड़ों के मुशाबी हैं। हमारे हड्डियां सख्त, तो पहाड़ भी क्या है? सख्त, आरे बासन में। फिर अल्लाह तबारक व तआला हमारे जिस्म में रगे बनाए हैं जिसमें खून दौड़ता है। जिसमें क्या दौड़ता है? खून दौड़ता है। तो अल्लाह तबारक व तआला इसी तरह जमीन के अंदर चश्मे बनाकर हैं जहां पानी दौड़ता है। तो हूबहू एक मिसाल, एक है आलम अकबर, दुनिया बड़ी दुनिया, एक है आलम असगर, छोटी दुनिया। तो ये अल्लाह की नेमतें भी, हड्डियां कोई मामूली चीज नहीं है, रगे में खून दौड़ना कोई मामूली चीज नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला अगर एक रग को भी बंद कर दे, अगर एक रग को भी अल्लाह क्या कर दे? बंद कर दे, कसम खुदा की कोई खोल नहीं सकता। पूरी दुनिया में को भी रगा खोल नहीं सकते। अल्लाह एक रग को अगर ब्लैक कर डाले, उसे इलाज करने का तरीका मालूम नहीं है किसी को, तो कोई भी नहीं खोल सकता। इंसान की जो अकल की रगे हैं, अल्लाह वो क्या करती? रोक डालती तो इंसान पागल बन जाता। हाथों की जो रगे हैं, अल्लाह उसे रोक डाले तो इंसान हाथों से माजूर बन जाता। पाँव के जो रगा हैं, अल्लाह तबारक व तआला उसे रोक दे तो पाँव से माजूर बन जाता इंसान। आंखों की जो चीजें, जो नूरानियत का जो नूर है, अल्लाह उसे रोक डाले तो इंसान क्या बन जाता? अंधा बन जाता। कानों में जो सुनने की ताकत है, अल्लाह तबारक व तआला वो रोक डाले तो बहरा बन जाता। सिर्फ ताकत को रोकने से लफ्ज बदल जाता। ताकत को रोकने से दूसरा क्या भी रोके नहीं अल्लाह। कान भी मौजूद है, आंखें भी मौजूद है, जबान मौजूद है, रगे मौजूद हैं, हाथ पांव मौजूद हैं, लेकिन सिर्फ अंदर की ताकत रुक गई तो इंसान का नाम बदल जाता। तो अल्लाह तबारक व तआला की नेमत है, अल्लाह तबारक व तआला की नेमत है। एक आंख की नेमत इतनी जबरदस्त है कि सूरज आया आंखें नजर आती, सूरज चला गया आंखें नजर नहीं आती। भाई रात के अंधेरे में आंखें नजर आती, खुले छती नहीं, बत्ती चलेगी भाई, लाइट चलेगी, अब आंखें खुले छी नजर आता है। क्या सेट करें देखो अल्लाह, आंखें खुली छ लेकिन बत्ती बुझते ही खुद ब खुद क्या नजर नहीं आता? आंखों को नजर नहीं आता। उजाले की जरूरत है अंधेरे में। कैसा बनेंगे देखो अल्लाह, कोई है बनाने वाला ऐसा? हड्डियां सख्त चीज नहीं, अरे सख्त चीज नहीं, ज्यादा चलने की वजह से, ज्यादा ये करने की वजह से घस घस को निकल को गिरना था नहीं, पुर्जे पुर्जे कितना इस्तेमाल करती नहीं हमें, हाथ पाँव जिस्म उठते रहती, जुड़ते रहती। 360 जोड़ा, वो भी 300 जोड़ा, 300 से ज्यादा जोड़ा ही। तो अल्लाह तबारक व तआला हर एक जोड़ को ऐसा बनाई कि कितना भी इस्तेमाल करो घसते नहीं, और घस गए को ऊपर से उसे मालिश भी करने की जरूरत भी नहीं। इतना जबरदस्त बना कोई अल्लाह, वाकई में अल्लाह को तबारक व तआला की कुदरत है। हाँ, इसी जिस्म को लेकर इंसान कभी 50 साल जी लेता है, कभी 100 साल जी लेता है, कभी 150 साल जी लेता है, कभी 80 साल जी लेता है। कभी भी हड्डियों को मरम्मत करना पड़ता है। देखो एक गाड़ी लो, 1 साल चलो, 2 साल चलो, खुद ब खुद लकीरा पड़ जाती, खुद ब खुद घसरा पड़ जाता, खुद ब खुद चीज पुरानी हो जाती रहती। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं, बचपन में कमजोर, जैसा जैसा इंसान बढ़ता जाता रहता उसकी ताकत भी बढ़ती जाती रहती, होता मजबूत होता जाता रहता। खाने के एतबार से भी देखो क्या शानदार चीजें, पीने के एतबार से भी देखो क्या शानदार चीजें, पहनने के एतबार से देखो क्या शानदार चीजें। मैं सिर्फ जिस्म का बोल रहा हूँ, सब तक अगर हमें घरान का देख लिए, चीज़ों का देख लीजिए, टेक्नोलॉजी का देख लीजिए, हमारे जितने भी चीज़ें रोजाना का सुबह से शाम तक जो 24 घंटे की जो चीज़ें इस्तेमाल कर रही, इन सब चीज़ों को देख ले तो हमारी अक्लें हैरान हैं, हमारी अक्लें हैरान हैं। इसीलिए सबसे पहले अल्लाह ये लफ्ज लाया कि सब तारीफें अल्लाह के लिए है। क्यों? जो पूरे जहां का पालनहार है। इसलिए उलमा फरमाते हैं कि अल्लाह की नेमतों पर अल्हम्दुलिल्लाह बोल डालो, अल्लाह खुश हो जाती।
पूरी जिंदगी में हर नेमत पर भी एक बंदा अल्हम्दुलिल्लाह एक मरतबा बोल दिया तो बस अल्लाह खुश हो जाता। जिस नेमत पर अल्हम्दुलिल्लाह बोल रहा थी अल्लाह तबारक व तआला उस नेमत का सवाल नहीं करते कि ये एक लफ्ज अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कायनात जमीन और आसमान से भी बढ़कर है। खाली अल्हम्दुलिल्लाह जबान से बोलना, कितना प्यारा जुमला है जिससे अल्लाह कुरान शुरू कर रही। जबान से निकालने में क्या हो जाता है, कैसे हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हूं, ठीक है अल्लाह की नेमत अल्हम्दुलिल्लाह फौरन बोलो, ठीक है हाथ आड़ा रखो अल्हम्दुलिल्लाह बोलो, कोई पूछे खैर खैरियत फौरन बोलो जी अल्हम्दुलिल्लाह, बस किस्सा खत्म। लफ्ज आप मामूली समझ रही, मामूली नहीं, ये लफ्ज आसमानों से उतरा, पहले आसमान में अर्श से उतरा भाई पहले आसमान में, फिर वहां से जिब्राइल लेकर उतरे हमारे नबी के सीने में, फिर हमारे नबी के सीने से उतरा सहाबा के सीनों में, सहाबा के सीनों से उतरा ताबईन, तबे ताबईन, आज हमारे तक इंशाल्लाह क़यामत तक ये लफ्ज जिससे कुरान शुरू हो रहा है। कितना प्यारा जुमला अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, ये जुमला अपनी जबानों में ले नहीं तो फिर क्या बोलो, मैं बोल तो नहीं, बस अल्लाह जो दिया है नहीं वो करते जाओ, बस नया नया करने की जरूरत नहीं, सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह, इन्ना लिल्लाह, सुभान अल्लाह, ये लफ्ज आप बोलते रहो। बस कोई चीज अच्छी नजर आ गई, कोई भी बच्चा कोई अच्छा खूबसूरत बच्चा नजर आ गया माशाअल्लाह बोल दिया, नजर नहीं लगती। कोई अच्छी चीज देख डाला मैं माशाअल्लाह बोला ले, हमारी नजर नहीं लगती, छोटा जुमला समझते, हालांकि नहीं, ताकत बहुत ज्यादा है इसमें, निस्बत अल्लाह की तरफ है भाई। अब ये मदरसा, अरे वसन ये मदरसा, पहले जब घर था तो यहाँ सोते थे, उठते थे, खाते थे, पीते थे, चलते थे, टीवियां देखते थे, गाने सुनते थे, सब कुछ चलता था घर पहले। अब मदरसा बन गया, अब कोई आता है यहाँ गाने सुनने, कोई आता अब टीवी देखने, कोई आता कुछ गलत काम करने, फौरन डरता उन्हें, क्या हो गया ये मदरसा हो गया। अरे जमीन वोचना भाई, कुछ बदल गया क्या मदरसा बोलते ही, कुछ आ गया नया नया वोच है, लेकिन निस्बत बदल गई। क्या बदल गई, निस्बत बदल गई तो चीज में इज्जत आ जाती है, खुद ब खुद क्या आ जाती है, इज्जत आ जाती है। भाई मिसाल के तौर पर मस्जिद है, अल्लाह का घर है, छोटी थी जगह, बहुत बड़ी थी लेकिन मस्जिद नहीं बनी थी, तो वहां चप्पल भी पे लग जाते थे, वहां आराम से बैठ कर ग़ीबत भी करते थे, हंसते थे, खेलते थे, कूदते थे, सब करते थे। लेकिन अल्लाह की शान मस्जिद अल्लाह बड़ी कर डाले, अब बे लग जाओ चप्पल, अब पे लग जाओ, अदना वो चप्पल निकाल मारती। अरे बस सबने क्यों, अब मामूली जगह नहीं, वो अब क्या हो गई, वो मस्जिद हो गई। क्या हो गई, वो मस्जिद हो गई। हमारे मुसलमानों को इतना प्यार मस्जिद से कि अंदर से पूरी खाली छोड़ दी, बाहर से बड़ा प्यार करते थे। हमारे गांव में बेंगलुरु में पाप गैर मुस्लिम भाई अपने कुत्ते को लेकर जा रहा था, वो कुत्ता गलती से उठा पेशाब कर डाला, मस्जिद के सामने जो गाड़ियां खड़े रहती नहीं उसके ऊपर कर डाला। मस्जिद के सामने पार्किंग में जो गाड़ियां खड़े रहती ना उसके ऊपर पेशाब कर डाला, सीधा बाटल लेकर सर पर फड़ा। उन्हें चुपके रहता है, उन्हें बुला भेजा उसके कैद में, इन्हों बुला भेजा उस कैद में। अंदर से तो खाली, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता मुसलमान को। रमजान में लो सवार डालो मस्जिद को, ऊपर से नीचे तक लाइटों से सवार डालो। अल्लाह का घर हजरत शानदार दिखना, चमकना। क्या भाई, गाड़ी को जबरदस्त चमका ले, बस को ऊपर से नीचे तक लाइटा। अंदर जाके देखो ड्राइवर भी नहीं है, सीटा भी नहीं, गेराम भी नहीं, क्या भी नहीं, क्या भी तो बाहर से अच्छी दिखन दे ले, बस अंदर कहीं को तो बदनाम बोलती नहीं, क्या पागल आदमी भाई, बाहर सवार है तो अंदर भी कुछ लायक कराना नहीं। चलो ड्राइवर भी है, सीटा भी है, लेकिन कौन नहीं है, आदमियां नहीं है। कभी खाली आती है, खाली जाती है, आदमियां बोलती इन्हें कौन रहा मेंटल, खाली बस को गई ले तब फिर आ रहा है, नहीं बोलती कि नहीं। जब भाड़े नहीं मिल रही तो क्या करना है, खड़ा कर डालना। मैं तजवीज़ दे रहा हूं, से देखो, तमसील दे रहा हूं, देखो मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं कि अल्लाह के घर को बाहर से नहीं, अल्लाह के घर को अंदर से खूबसूरत बनाओ। सहाबा की मस्जिदें छोटी थी लेकिन नमाजी क्या थे,
पक्के थे, बड़े बड़े थे नमाजी। बोलती नहीं, सहाबा की मस्जिदें कच्ची थी लेकिन नमाजी कैसे थे? पक्के थे। आज अंबुजा सीमेंट, कौन सी अंबुजा सीमेंट कहते, ले जाको पत्थर मारे तो भी, ले जाको बड़ा तुंड मारे तो क्या होती नहीं कहते, दीवार गिरती नहीं कहते। क्या क्या कि सीमेंट ना के नामा ही भाई बहुत भारे। अरे बस वो सीमेंट से बनी सुमराना, कौन सी सीमेंट से बनी तो क्या, जब नमाजी मस्जिद में नहीं आते तो मस्जिद बद्दुआ देती कहते मोहल्ला वाले, मस्जिद बद्दुआ देती कहते शहर वालों। निस्बत बदल गई भाई तो मकाम भी बदल जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई मामूली जुमला नहीं है, बहुत बड़ा जुमला है अरे बस में। इसलिए तमाम तारीफ अल्लाह के लिए, क्यों, जो पूरे जहां का पालन वाला। मैं इसके बारे में तफसील से बोल दिया था कि अल्लाह कितनी मखलूक़ात को अल्लाह खिला रहा है, पिला रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि खजानों का मालिक अपनी बात में पक्का है अल्लाह। इन्नल्लाह ला युखलिफुल मिआद, अल्लाह वादे के खिलाफ कभी भी नहीं करता, अल्लाह वादे के खिलाफ कभी भी नहीं करता। अल्लाह वादा करा था हमारे नबी से, इदा जा नस्रुल्लाहि वल फतह व रअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा। अल्लाह वादा करा था इन्ना आतैना कल कौसर। अल्लाह बहुत सारे वादे कर को है हमारे नबी से, और पूरे वादे कर को भी दिखाया अल्लाह। फतह मक्का करा तो बोला था अल्लाह, सुलह हुदैबिया में अल्लाह करा को दिखाया। तो जितने भी अल्लाह के वादे हैं पूरे हुए हैं दुनिया में, एक भी नहीं हुए, एक भी क्या हो पूरे नहीं हुए, ऐसा नहीं, हर एक वादा अल्लाह का पूरा हुआ है। तो सारे जहां का मालिक कौन है? अल्लाह है। दूसरा जुमला रहमान रहीम, ये तो बोल दिया था रहमान आम है, रहीम खास है। रहमान आम है, रहीम खास है। इसलिए कोई भी रहमान भाई नाम रख लेना नहीं, रहीम भाई नाम रख लेना नहीं, अल्लाह का नाम है खास। इसलिए अब्दुर रहमान बुलाना, क्या बुलाना? अब्दुर रहमान। अगर कोई भी रहमान रख लिया है तो हमें क्या बुलाना? उसे अब्दुर रहमान। अल्लाह का नाम कोई भी रख लिया भाई उसे अब्द लगाना, समझ आ रहा है? अरे भाई अल्लाह का नाम कोई भी रख लिया है उसे क्या लगाना है? अब्द लगाना। क्या लगाना? अब्द लगाना। तो रहमान आम है, पूरी दुनिया के लिए रहमान है, रहीम सिर्फ खास है मैदान हशर में। उसके बाद और एक जुमला था मालिक यौमिद्दीन। तो इसमें और एक तफसीर आती है कि देखो पूरी कायनात को अल्लाह खिला रहा है। क्या करा रहा है? पूरी कायनात को अल्लाह खिला रहा है, पिला रहा है, 3-3 वक्त का खाना खिला रहा है। अरे बस सब में तो दिल में ख्याल आता अल्लाह खिला रहा है, पूरी कायनात को खिला रहा है, मंजे भी खिला रहा है। मैं गुनाह करे तो, मैं जिना करे तो, मैं चोरी करे तो, मैं ये करे तो, मैं वो करे तो, अल्लाह खिलाता कि नहीं की? क्या अल्लाह खिलाता कि नहीं की? तो अल्लाह फौरन ला रहा है अर्रहमान निर्रहीम। घबराना को मैं खिला दो, क्या कर दो? खिला दो। क्या कर दो? खिला दो। तू घबराना को, चलो भाई अल्लाह खिला रहा है, कहते गुनाह भी करते रहेंगे और क्या भी करते रहेंगे? खाते भी रहेंगे, इज्जतें लूटते भी रहेंगे और खाते भी रहेंगे, पूरे के पूरे गांव को जला भी डाला लेंगे और खाते भी रहेंगे। गरीब के कैसा बंद हो जा रही। कोई भी गरीब मर गया, केस क्या हो गया? क्लोज हो गया। बच्चियों को बलात्कार करके मार दिया गया, आवाज पुकाराज नहीं, बंद हो गया। गांव गांव को जला दिया गया, आवाज पुकाराज नहीं, बंद हो गया। बड़े बड़े पैसे वालों के बच्चे, हुकूमत वालों के बच्चे, ओहदे वालों के बच्चे शराब पी के रातों में बच्चियों को बलात्कार करके जान से मार दिए, क्या हो गया? आवाज पुकाराज नहीं, बंद हो गया। गरीबों को पैसे देकर मुंह बंद कर दिया गया, गरीबे चीखते रहे, चिल्लाते रहे, भाई बड़ा भाई चिल्लाता रहा, छोटा भाई जब्त कर लिया जमीन। हाँ, छोटा भाई चिल्लाता रहा, बड़ा भाई जब्त कर लिया जमीन। भाना का हक मार को खा गया, बहना का हक मार को खा गया, बीवी बच्चा को तकलीफ दे रहा है, रातों रात मार डाले, मालूम हुआ नहीं क्या हुआ, फितरी मौत मर गए। हते हते गला काट डाले, ले जाकर टुकड़े को टुकड़े करके फेंक डाले, कौन करे मालूम नहीं। जुल्म हो रहा है, मालूम नहीं। अरे बस में रहमान है, रहीम है, चलो क्या कर रहा अल्लाह? खिला रहा है, पिला रहा है, अल्लाह फौरन ला रहा है। मालिक यौमिद्दीन, क्या ला रहा अल्लाह? क्या? मालिकी यौमिद्दीन।
अरे भाई अल्लाह दुनिया का भी मालिक नहीं, अल्लाह आसमानों का भी मालिक नहीं, अल्लाह जमीनों का भी मालिक नहीं, मालिक यौमिद्दीन क्यों लाना था? मालिक यौमिद दुनिया लाना था नहीं? हाँ, मालिक यौमिल आखिरा लाना था नहीं? हाँ, मालिक यौमिल समावात लाना था नहीं? मालिक यौमिल अर्द लाना था नहीं? जमीनों का दिन का मालिक, जमीनों का मालिक, मालिक की समावात लाना था। फिर अल्लाह मालिक यौमिद्दीन क्यों ला रहा है? इसलिए कि अल्लाह ये बताना चाहता है कि दुनिया में जितने गरीबों को मार दिया गया, जितने कमजोरों को मार दिया गया, 6 साल की बच्ची को बलात्कार करके मार दिया गया, नौजवान बच्ची को मार के टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिया गया, गरीब गवाओं को जला दिया गया, गरीबों के घरों को जला दिया गया, कई सारे किसान कर्ज नहीं देने की वजह से फांसी देकर मर गए, उनको झूठे वादे किए गए, सब देख रहा, सब देख रहा, सब देख रहा है, सब देख रहा है। मालिक यौमिद्दीन बदले के दिन का मालिक हो, वहां नहीं बच सकते। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। भाई बोल तू कतो हिम्मत से रहती, क्या हाल है प्रूफ उसके पास से बोलता कितना, क्या करेंगे, बात को पलटा लेंगे। एक आदमी बोला भाई, मैं मसूद को बोला, मसूद तुम्हारे बारे में मैं बोलता हूँ अदनान को, बोल ले जाओ जी, क्या बोल ले जाओ, नूर बोल तो, नूर बोल ले जाओ, मोहम्मद बोल तो, बोल ले जाओ, नूर दिखा तो, नूर तुम्हारे बारे में एक वीडियो है, मोहम्मद एक वीडियो है दिखा तो। टेंशन अब टेंशन कौन सा वीडियो मिल गया कि क्या मिल गया कि बोल दूंगा तो टेंशन नहीं उतना, टेंशन नहीं रहता। तुम्हारे बारे में एक वीडियो है दिखा तो अब टेंशन। अल्लाह बोल रहा बोल तू नहीं दिखा तो, क्या बोल रहा अल्लाह? दिखा तो। कहेगा तो बोलेगा ना अल्लाह, नहीं अल्लाह मैं नहीं था, मेरे सके 7 जने थे ना दुनिया में, उनमें से एक करेंगे कौन तो भी। अरे बोल दी क्या 21 सूरत के कितने रद्दी कहते हैं? 7 कहते। अरे रे हमला स्मरण पे वो। और ऊपर से बड़ी बात क्या, इस जमाने में इंसान का तो दूसरे जमाने में क्या होना चाहिए कहते हैं। इस जमाने में इंसान है, दूसरे जमाने में तुम्हें क्या बनती हो, क्या बनना दिनोर, क्या होना बन गया कहते हैं, अच्छा नहीं है। अल्लाह अकबर। मुसलमान आप बोल रहे हैं आज मौना आपके जमाने में कैसा करती है, ऐसे वैसे हो गया। अगले जमाने में शहद की मक्खी बन जाना, अगले जमाने में घास बन जाना, अगले जमाने में पहाड़ बन जाना। जमाना के माना नहीं है, खिस्सा खत्म, दुनिया खत्म, खिस्सा खत्म, बात आई बात गई। कौन के बोलते थे नियत में खतरा झोली में पतरा है, और अच्छा बोलते थे तो नहीं है। अल्लाह बोलती दिखा दो, कोई बच सकता है? अरे बच सकता क्या भाई, नहीं, कुछ भी बहाने डालो। इंसान सोचता कहता है कितने की झूठा मुल्क को बच गया मैं, कहा दुनिया में। अल्लाह रहमान भाई, अल्लाह क्या रहीम, बच जा तो। मुझे भी आता टेक्निक अल्लाह से बात करने का, हाँ ठीक है आजा मालिक यौमिद्दीन, आजा। पाए पाए का अल्लाह हिसाब लेता कहता, अरबों खरबों इंसान खड़े रहती, एक एक को बुला अल्लाह घंटे घंटे को पूछता कहते ये कहीं को करे, ये कहीं को करे, ये कहीं को करे। मालिक यौमिद्दीन खिला रहा है, पिला रहा है, रहम कर रहा है, छोड़ रहा है। समझो ना को इन्ना रब्बका लबिल मिरसाद, घात में बैठे अल्लाह। क्या मतलब, हिरनी जब हरियाली खाती रहती है मुतमईन होकर, शेर छपको बैठता है कि नहीं। हिरनी क्या समझती रहती है, कोई नहीं है, क्या कर रही हूं मैं, खा रही हूं, बड़े इत्मीनान से खाती रहती है, गला ऐसा खुल कर आता, अच्छा हाँ खाती रहती है। अचानक आहट क्या कि भागने की तो महसूस करते हिरनी, फौरन महसूस करे अब भागना शुरू करते, वक्त हो गया अब भागना शुरू करते, फौरन आप पीछे से खा पंजा शेर का, चीता का, बाघ का, अरे बस सब में आराम से झपटते, आराम से करीब आ गए तो अरे बस सब में उसे एहसास ही छता नहीं अब मैं मर जाती हूँ। फिर वक्त मरने का उसे मालूम रहता तो वहां खाती थी खड़कों ने। हाँ इसी तरह इंसान मस्त जिंदगी गुजारता रहता है, झूठ भी बोलता रहता है, धोखा भी देता रहता है, गद्दारी भी करता रहता है, नाहक तकलीफां देता रहता है, ग़ीबतें करता रहता है, चुगलियां करता रहता है, नमाज़ां छोड़ता रहता है, हरामकारी में मौजूद रहता है, जिना में अपनी पूरी जिंदगी गारत करता रहता है। अचानक मलकुल मौत का पंजा
इदा जाअ अजलुहुम ला यस्तखिरून साअह वला यस्तक़दिमून। जब वक़्त मुक़र्ररा आ जाएगा तो एक लहज़ा पीछे नहीं, एक लहज़ा आगे नहीं, तब का तब चलते रहना। लेकिन नेक लोग वैसा नहीं। अल्लाह हम सबको हुस्न खातिमा नसीब फरमाए कि भाई मैं आ गया हूँ, कलिमा पढ़ लो, मैं आ गया हूँ 2 रकात पढ़ लो, मैं आ गया हूँ क्या तो वसीयत करना है तो कर लो, निकलना है, सफर है। अरे देखे ही नहीं, एक ही आदमी 2 आदमी फ्लाइट में आ रही, क्या आ रही, 2 आदमी फ्लाइट में आ रही। एक आको 10 साल के बाद अपने 20 बच्चों से मिलने आ रहा है। आई बात सुन में, कितने साल के बाद है? 10 साल के बाद। उसके दिली हालत कैसी रहती है? खुशी। वो फ्लाइट में, वो एसी में, वो सीट में एक मुजरिम को लेकर आ रही इंडिया में फांसी देने के वास्ते। क्या करने के वास्ते? इंडिया में उतरते ही क्या उसे फांसी। हालांकि वो फ्लाइट, वो खाना, वो सीटा, वो एयर होस्टेस, वो सब कुछ भी मौजूद है वहां, फिर भी उसे इंडिया नजदीक आते आते जो क्या होता रहता है? डर डर डर। इसे इंडिया आते आते जो इसे क्या होता रहता है? खुशी खुशी खुशी। तो मोमिन दुनिया में जिंदगी गुजारता है तकलीफ से, लेकिन जब उसे मौत का वक्त आता है, जैसा जैसा करीब आता रहता है उससे खुशी बढ़ती जाती रहती है, खुशी बढ़ती जाती रहती है। इसी तरह काफिर मजे की जिंदगी गुजार लेता है, लेकिन जब उसे पकड़ डालती हुकूमत, जब उसका मौत का वक्त नजदीक आता रहता है, अब उसे डर शुरू होता रहता है, डर शुरू होता रहता है, दिली कैफियत है। तो मालिक यौमिद्दीन कभी भी भूलो ना अल्लाह के वास्ते। अल्लाह इसीलिए सूरह फातिहा में ये लफ्ज जरूर लाया, मालिक यौमिद्दीन, बदले के दिन का मालिक है, मालिक है, अकेला मालिक है, बहुत सारे नहीं, कोई नहीं बचा सकते वहां, सिर्फ कौन मालिक? अल्लाह। मुलूक नहीं लाया भाई, मुलूक यौमिद्दीन, बदले के दिन के बादशाह हैं, नहीं लाया। मालिक यौमिद्दीन, बदले के दिन का अकेला मालिक। वहां सिर्फ को किसकी हुकूमत चलती है? मालिक का तो सिर्फ अल्लाह। बदले के दिन का मालिक, वहां किसका भी नहीं चलता, ना अंबिया का चलता है, ना फरिश्तों का चलता है, ना सहाबा का चलता है, ना औलिया अल्लाह का चलता है, ना हाफिजों का चलता है, ना आलिमों का चलता है। फिर हजरत बोलती ना हदीस में, हाफिज कुरान ने तुमको सिफारिश, आलिम दीन ने तुमको सिफारिश, अंबिया की सिफारिश, मन दल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निह। जिसे अल्लाह बोलती बात करो उन्होंने बात करना, जिसे अल्लाह बोलती सिफारिश करो उन्होंने करना। हर एक सिफारिश नहीं कर सकते। अरे वसन में इल्ला मन अज़िना लहुर रहमान व क़ाल सवाबा, कोई बात नहीं कर सकते, लेकिन कौन बात कर सकते? हजरत इल्ला मन अज़िना लहुर रहमान, जिसे रहमान इजाजत दे उन्हें बात करना। और वो भी बात कैसी बात करना? व क़ाल सवाबा, ठीक ठीक दुरुस्त बात करना, लंबे चौड़े किस्से कहानियां सुनाना नहीं, हुआ ठीक ठीक बात करते रहना। एक रौब छा रहा था पूरे अर्श के मैदान में, अंबिया की हालत बेहालत होगी रहती है, वहां हमारे जैसों की क्या हालत। अल्लाह हम सबको क़यामत के दिन के सख्ती से, मैदान हशर की सख्ती से अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो मालिक यौमिद्दीन सर नाराय। फिर एक जबरदस्त जुमला अल्लाह ला रही, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इसमें तो पहले इय्याका नअबुदु, हम साफ बोल दिए कि अल्लाह इबादत के लायक तो तू ही है, कहीं को तमाम तारीफें तेरे लिए, पालने वाला तू, रहमान तू, रहीम तू, मालिक यौमिद्दीन तू। जब सब कुछ तू है तो अल्लाह तेरी इबादत भी तेरे लिए चाहिए, इबादत भी तेरे लिए चाहिए। हम तेरे अलावा किसी की इबादत नहीं कर सकते। कोई है तो लाओ, नहीं ला सकते। पूरी कायनात मिलको नहीं ला सकते अल्लाह के अलावा किसी को। इसलिए सिर्फ अल्लाह है तो इबादत सिर्फ किसकी है? अल्लाह की है। सजदा सिर्फ किसके लिए है? अल्लाह के लिए है। हाजत रवा, मुश्किल कुशा, तकलीफों को खोलने वाला, सेहत देने वाला, इज्जत देने वाला, जिल्लत देने वाला, खुशी देने वाला, गम देने वाला, बीमारी देने वाला, सेहत देने वाला, मौत देने वाला, जिंदगी देने वाला, सब कुछ करने वाली जात सिर्फ कौन है? अल्लाह की जात है। बस किस्सा खत्म। बातें लंबे चौड़े करना नहीं भाई, किस्सा खत्म होता। अरे बस सबने जिससे बात हजम नहीं होती उन्हें सवाल बहुत ज्यादा उठाता। अरे है कि नहीं भाई? जिसे दाल खाना खाने की आदत है, जिसे खाने में क्या भी खाने की आदत है, उन्हें भूख की वजह से क्या दिया तो खा जाता। रोटी भी खा जाता है, रोटी सूखी रोटी के साथ चार भी खा जाता है। चार और रोटी का कॉम्बिनेशन जमता नहीं, लेकिन फिर भी क्या करता है? भूख है सो से खा जाता।
अरे वास्तव में खाना और चटनी के साथ खा जाता। जिसे भूख नहीं है, जिसे नफसानी ख्वाहिशात थी, जिसे खाने में सुकून नहीं है, उन्हें आइटम ढूंढता, अचार है क्या, पपड़ा ही क्या, निपटा ही क्या, ये ही क्या, वो ही क्या। अरे तुझे भूख लगती थी तो क्या होना, तो वो खाना था ना थी, भूख जो लग रही है वो खा लेना था नहीं, आइटम कहीं ढूंढ रहा तुझे सुकून नहीं है, क्या नहीं है, सुकून नहीं है। इसीलिए देखो उलमा, इसीलिए देखो बुजुर्गान दीन, इसीलिए देखो अल्लाह वाले जिस हाल में थे अभी भी उसी हाल में ही। लेकिन आजकल के नौजवान देखो हेयर स्टाइल कैसे कैसे बदला रही, महीना महीना हुआ तो एक नया हेयर स्टाइल, अजीब अजीब कपड़े, अजीब अजीब चीजें, अजीब अजीब मोबाइल, अजीब अजीब गाड़ियां। क्यों? सुकून नहीं है जिंदगी में, क्या नहीं है, सुकून की तलाश में कर रही है सभी होना, लेकिन सुकून नहीं मिलता। अल्लाह सुनो, बिदिक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, सुकून मिलना तो सिर्फ कहाँ मिलता है, अल्लाह की याद में मिलता। तो इबादत के लायक सिर्फ कौन, अल्लाह। इबादत के लायक कौन, वो इय्याका नस्तईन, अल्लाह तुझे ही से मदद मांगते हैं। मदद किससे, तो इसके बारे में भी तफसील से आई थी कि वसीला, वसीला अल्लाह बोला है मांग सकते हैं, मांगो, लेकिन वसीले के वजह ही से हमारी दुआएं कबूल हो सकती हैं, तो ये बात गलत है। वसीले के बगैर भी दुआएं कबूल हो सकती। अल्लाह दुआ कबूल करने के वास्ते किसी के वसीले का मोहताज नहीं। अरे वह सब में हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह, कौन, हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में एक नौजवान था, बड़ा अय्याश था, बड़ा अय्याश, बहुत पैसे वाला भी था, लेकिन बाप नहीं था, तरबियत करने वाले कोई नहीं थे, तो अय्याशी करता 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 मौत के आखिरी वक्त में पहुंच गया। हजरत हसन बसरी कई मर्तबा समझाते, उनकी जो अम्मी थी, उनकी जो बूढ़ी माँ थी, हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के वाज़ो नसीहत में आकर बैठा करती थी। तो जब सकरात की हालत में आ गया तो माँ से कहने लगा कि अम्मा मुझे डर लग रहा है, मैं अल्लाह से माफ़ी मांगना चाहता हूँ, मैं अल्लाह से तौबा करना चाहता हूँ, जाओ अम्मा हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह को बुला कर आओ कि हजरत मुझे तौबा कराती है, अल्लाह से मैं तौबा कर लेता हूँ। तो माँ गई हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास, जाकर कहने लगी कि हजरत मेरा बेटा सकरात की हालत में, आ जाओ तौबा करा लो मेरे बेटे को। तो हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे माफ़ करना, मुझे बहुत सारे काम हैं, वैसा भी आपके बेटे को तौबा करा को क्या ज़रूरत, पूरी ज़िंदगी नमाज नहीं पढ़ा, पूरी ज़िंदगी अल्लाह का खौफ पैदा नहीं करा, अल्लाह से मोहब्बत नहीं करा, नहीं लो माफ़ करो, मुझे काम है, मैं नहीं कर सकता। तो माँ गई, माँ जाकर कहने लगी कि बेटा हजरत आने से मना कर डाली, हजरत आने से मना कर डाली। तो नौजवान था, आसमान की तरफ देखकर कहने लगा कि अल्लाह तू मुझे माफ करने के लिए हजरत हसन बसरी का मोहताज नहीं है, तू मुझे माफ करने के लिए हसन बसरी का मोहताज नहीं है, अल्लाह माफ कर दो, अल्लाह माफ कर दो। बोलता बोलता मर गया, बोलता बोलता मर गया। माँ फिर गई कि हजरत मेरा बच्चा मर गया है, नमाज जनाजा तो भी पढ़ा लो। नहीं नहीं मत जाओ, काम है, नहीं पढ़ा सकता, जो पूरी जिंदगी नमाज नहीं पढ़ा, मैं उसकी नमाज जनाजा क्या पढ़ाऊं। हजरत भी अपनी जगह पर सही थे, कई को तो जिनसे ज्यादा मोहब्बत होती नहीं है उनके खिलाफ काम भी पसंद नहीं आता, इसे बोलती जज्ब मजजूब। जैसे राबिया बसरिया रहमतुल्लाह अलैहा, एक हाथ में पानी एक हाथ में आग, लोग पूछे कहां जा रही, पहाड़ा में फिर रहे थे। राबिया बसरिया कहने लगी जहन्नम को आग लगा डालती हूँ, क्या हो, जन्नत को आग लगा डालती हूँ, जन्नत को जहन्नम को पानी से बुझा डालती हूँ। होता है, अकीदे के खिलाफ बात नहीं है, अकीदे के खिलाफ नहीं है, जहन्नम को बुझा सकती है हमें, अकीदे के खिलाफ नहीं बात है, जन्नत को आग लगा सकती है हमें, अकीदे के खिलाफ नहीं है, लेकिन ये जायज ये उन्होंने होश में नहीं बल्कि अल्लाह की मोहब्बत में बोल रही। क्यों? लोग जन्नत में जाने के लिए नेकी का काम कर रही, लोग जन्नत में जाने के लिए नेकी का काम कर रही, किसके लिए नहीं कर रही, अल्लाह के लिए नहीं कर रही। लोग जहन्नम से बचने के लिए गुनाह को छोड़ रही, तो मुझे पसंद नहीं आ रहा है, अमल किसके लिए करना, अल्लाह के लिए, गुनाह किसके लिए बचना, गुनाहों से अल्लाह के लिए। तो ये जज्ब यानी आदमी को होश नहीं रहती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कई मरतबा ये हालत आ जाती कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अजान होती तो अम्मी आयशा आते, मेरे हुजूर क्या हुआ, तो अम्मी आयशा को पूछते तुम कौन हो, हमारा नबी खुद पूछते अम्मी आयशा को क्या हो, तुम कौन हो। अल्लाह के नबी सब भूल जाते थे,
अल्लाह की वो कैफियत आ जाती थी, अल्लाह की वो मोहब्बत आ जाती थी, अल्लाह के मोहब्बत में इतना मुनमिक हो जाते, अल्लाह के खौफ में इतना उतर जाते थे कि कभी कभी घर वालों को याद दिलाना पड़ता हमारे नबी को कि हुजूर मैं आयशा हूं, मैं आपकी बीवी हूं, है हदीस है। तो ये हालात है, मोहब्बत के हालात है, होता भी कभी कभी मोहब्बत में होता है। तो वो बच्चा रोता रोता मर गया, तो मां गई जनाजे के दरखास्त, लेकिन हजरत मां ने नहीं भेज दिया। तो मां जाकर तैयारी कर रही थी, जनाजे की तैयारी कर रही थी, फौरन दरवाजा खटखटाने की आवाज खोलती है तो क्या देखती है, हजरत हसन बसरी दरवाजे पर खड़े हैं और चेहरे पर डर है, खौफ है, डरे हुए हैं, घबरा गए हैं। हजरत आप आ गए? तो पहले सुनो, जब मैं सोने लगा तो अल्लाह की तरफ से आवाज आई कि मेरा बंदा मरा पड़ा है, मेरा दोस्त मरा पड़ा है, तुम्हें नमाज जनाजा को भी नहीं जाते, जाओ वरना विलायत से छीन लेता हूं तुम ना, विलायत से छीन लेता हूं तुम ना, जाओ जल्दी। जिस तरह अल्लाह जिब्राइल को बोला था मेरे इब्राहिम खलीलुल्लाह को आग नहीं लगना वरना मैं तुम ना फरिश्तों की लिस्ट से निकाल दूं, मेरे नबी के खून का खतरा जमीन पर नहीं गिरना ताइफ में वरना मैं क्या कर डालता तुम ना फरिश्तों की लिस्ट में से निकाल दो। तो जिब्राइल आ गए थे सातवें आसमान से उतरकर, खून का खतरा गिरने से पहले पहले, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग जलाने से पहले पहले। तो अल्लाह यहां माफ कराया है वसीले से, अरे बोलो भाई, वसीले से। बहुत सारे मुसलमान बोले भाले ऐसे जिनको अल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में तुफैल में दुआ कबूल करना बोलना चाहता नहीं। भाई कई सारे मुसलमानों को मैं खुद देखा हूं इस्तिग़फ़ार पढ़ाती निके में, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व ख़तीअतिन व अतूबु इलैहि बोलना नहीं आता। बहुत सारे ऐसे भी देखा मैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बोलना नहीं आ रहा है। क्या बोलने नहीं आ रहा है? मेरी बात झूठी है सच्ची है? देखिए नहीं कई सारे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, पापा आता नहीं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत सारे पढ़े लिखों को ये बोलना नहीं आता, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं। क्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलना नहीं आ रहा है। तो अब उनको बोल दिए कि अल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदका और तुफैल में कबूल फरमा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से कबूल फरमा। तो बोल सकती हो ना भोले भाले मुसलमान? नहीं बोल सकते। याद करना भाई, याद तो करो, याद तो करो भाई, सिखाओ तो सही। खाली बयानात कर डालने से हो जाता है? तक बिठाना नहीं, बिठा को समझाना नहीं, वही तो काम कर रही है दावत तबलीग वाले। अल्लाह इस काम के ऊपर जितने भी बुरी नजर रखें अल्लाह उनको हिदायत अता फरमाए, अल्लाह उनको सही समझ अता फरमाए। खुद मुसलमान होकर एक दावत एक तबलीग के नाम पर अच्छा नहीं दिख रहा, क्या गलत कर रही? कोई बोलने वाला बड़ा अच्छा बोला, उन्होंने बात करे तो या तो आसमान के ऊपर की बात करती है या नहीं तो जमीन के नीचे की बात करती है, बीच की बात करते नहीं। वो तबलीग वाले बात करे तो आसमान के ऊपर की बात करती, नहीं तो जमीन के नीचे की बात करती। क्या आसमान के ऊपर की जन्नत, जमीन के नीचे की खबर, ये दो दूसरा छोड़ को अब तब देखी दूसरी टॉपिक। दरख्त जब अच्छा होता नहीं, फल जब अच्छे लगने लगती नहीं, पत्थर उसे लगता सो फलिश नहीं बेको तो जब पत्थर मार लखड़ता है मार लग रहा तो आदमियां पूछती क्या कर रहा बा? नहीं पत्थर मारता हूं फलना गिरन दे। कौन से फलना लगी बा पत्या में तुझे? फल जब अच्छे आती देखो तब क्या होती आदमियां पत्थर मारती। अब दरख्त बेजार कर ले, क्या कर ले? मुझे खाली क्या मारते रहती, पत्थर मारते रहती। आज के बाद में क्या नहीं करता, फल देता नहीं होता है, गिरा कर लेता दरख्त देता से रहता। तुम्हें क्या तभी पत्थर मारो देखो, अब भी रहती बारिश अच्छा पड़ेगा ना, अब भी रहती अच्छे देता फलना। हमारा काम बस करते जाते रहना, क्या गिरा कर लग चले आना नहीं, हम पत्थर मारे ना ना। अरे बात सब में तो कहां से कहां की चले आती है बात। तो बोलने का मतलब ये है कि बहुत भोले भाले ही मुसलमान, बहुत भोले भाले ही। तुम्हें ये बोलना हजरत बहुत चालाक, हजरत आजकल के बच्चे क्या कहते हैं, आजकल के बच्चे बहुत चालाक हजरत, हमारा बच्चा स्क्रीन लॉक खोल डाला। अरे क्या भाई
स्क्रीन लॉक खोलना चालाकी। वो बच्चे को पूछ कर देखो वजू के फराइज। हजरत हमारा बच्चा कंप्यूटर ऑन कर रहा है, वो बच्चे को पूछ को देखो कुल आऊदु बिन्नास का सूरा। दुनिया में आगे बढ़ गया तो चालाक। अरे भाई 10th भी पास करा नहीं साला, आज लाखों करोड़ मिलियन डॉलर का मालिक बने, 10th भी पास नहीं होने आई बात सब में। एक लहजे में कितने की मिलियन का माता कहते हैं, 10th भी पास नहीं, पढ़ाया लिखाया नहीं होना। हमारे हिंदुस्तान में भी कई सारे ऐसे ही जिनको पढ़ाई आतीश नहीं, लेकिन दुनिया में क्या कर गए उन्होंने, टॉप कर गए। जितने भी टॉप कर गए उन्होंने तो वेल्डिंग शॉप में, कॉल सेंटर में बैठ को कामा करते हैं। खाली स्क्रीन लॉक खोल डाला तो बच्चा चालाक का, कंप्यूटर ऑन कर डाला तो बच्चों का मेमोरी पावर वैसा रहता सो। इसीलिए हमारे नबी बोले सो बच्चों का पहला मदरसा माँ का गोद है। बच्चों का पहला मदरसा क्या है? माँ का गोद है। बच्चा वही सीखता है जो माँ को करते हुए देखता है, बच्चा वही सीखता है जो बाप को करते हुए देखता है। तो तुम्हें सिखा सो बच्चा चालाक नहीं, तुम्हें सिखा सो बच्चे को चालाकी। इसे चालाकी नहीं बोलते, चालाकी ये नहीं, चालाकी ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जब भी आंधी आती, जब भी तूफान आता तो बच्चे भी भागते कि हमारे नबी क्या करते हैं। अब 6 साल की उम्र के बच्चे, 7 साल की उम्र के बच्चे हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु के बाजू आकर खड़े होकर पूछते कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ुबिल्लाह कौन की गालियां देता कहता ना, कौन है अबू जहल। बच्चे वो चालाक जो उंगलियों को ऐसा कर को खड़ते थे जंग में, ताकि हमें लंबे चौड़े दिख जाना, हुजूर हम नाकाम बुला लग जाना, जंग में बुला लग जाना। इनको बोलती चालाक। चालाक उनको बोलती कि एक मरतबा एक बच्चा रो रहा था, बच्चे अखरोट से बादाम से खेल रहे थे, तो एक अल्लाह वाले गालिबन बहलुल दाना रहमतुल्लाह अलैह गालिबन पूछने लगे बेटा कहीं को रो रहा है? बच्चे खेल में जमा लिए, क्या मैं दे तो ले तुझे अखरोट भी बादाम। तो कहने लगा बहलुल दुनिया में खेलने के वास्ते ही है। तो बहलुल रहमतुल्लाह अलैह करे बच्चा लेकिन बातें इतने बड़े बड़े। तो कहने लगा कि बहलुल दुनिया में खेलने के लिए नहीं आए, झूठी तसल्ली दोनों को। तो बेटा इतनी छोटी उम्र में डरने की जरूरत नहीं, बेटा कुछ भी नहीं होता। थोड़ी तसल्ली दोनों को मैं देखता हूँ हमारी अम्मी को, जब भी चूल्हा सिलगाती अम्मी पहले छोटे लकड़ियां रखती, बाद में क्या करती है अम्मी बड़े लकड़ियां रखती। तो क्या मालूम अल्लाह जहन्नम में पहले छोटे बच्चों को डाले, फिर क्या करे बड़े बच्चों को, बड़े लोगों को डाले, इसलिए रो। तो बहलुल रहमतुल्लाह अलैह ये सुनते ही गिर गए बहलुल रहमतुल्लाह अलैह। इससे बोलते सो चालाक। दीन में आगे बढ़ना ये चालाक। दुनिया में आगे बढ़ने वाले बहुत सारे काफिर हैं, बहुत सारे मुशरिक हैं, बहुत सारे यहूद और नसारा हैं, दुनिया में बहुत आगे बढ़ रहे हैं। उनके साथ तशबीह देखो, आप बोल रहे हैं कि बच्चे चालाक हैं। चालाकी इसे नहीं बोलते, चालाकी इसलिए बोलते हैं कि दीन में आगे बढ़ना, दीन में दीन की सूझ समझ आगे बढ़ना, इसे बोलते सो चालाक। वरना बहुत सारे कल क़यामत के दिन बोलती ना कि हमें अक्ल इस्तेमाल करनी, अगर हमें अक्ल इस्तेमाल करते तो हमें जहन्नम में नहीं जाते थे, कहाँ जाते थे? जन्नत में जाते थे। तो इबादत भी किसकी? अल्लाह की। मदद भी किससे? अल्लाह से। फिर इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह बोल रहा है रास्ता भी मेरे से मांगो। दुआ करने का तरीका बता रहा है। इसमें उलमा ये फरमाते हैं कि दुआ करना पहले अल्लाह की तारीफ करो। दुआ में पहले क्या करो? अल्लाह की तारीफ करो, नबी पर दरूद पढ़ो, फिर क्या करो? अपनी दुआ मांगो, अपनी दुआ मांगो। दुआ में पहले किसकी तारीफ? अल्लाह की तारीफ। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह फरमा रहा सीधे रास्ते पर चलना, तो भी मुझसे मांगो। और अल्लाह बोल रहा है किनका रास्ता मांगना, वो भी बता रहा अल्लाह। सीधा रास्ता, अच्छा चलो भाई सीधा रास्ता, ठीक, कौन सा सीधा रास्ता वो तो मालूम होना नहीं, अल्लाह वो भी बता रहा है। सिरातल लदीना अन्अमता अलैहिम, अल्लाह खुद फरमाता है वल्लदीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबलना। जो भी इस रास्ते में तकलीफें उठाती अल्लाह खुद उनको रास्ता दिखाता कहता है। अल्लाह खुद तकलीफें उठाना दीन के कामों में, जैसे सहाबा उठाए तकलीफें, जैसे बुजुर्गान दीन उठाए तकलीफें, अल्लाह खुद उनको रास्ता दिखाया नहीं? इब्राहिम अलैहिस्सलाम को खुद रास्ता दिखाया नहीं? अल्लाह दिखाया कि नहीं भाई? हाँ, कितने सारे सहाबा जो पैदा हुए कुफ्र की हालत में, शिरक की हालत में, लेकिन अल्लाह उनको रास्ते दिखाया नहीं। मुजाहदा किए, तकलीफें किए, जज्बा था, शौक था, तो अल्लाह तबारक व तआला ईमान की दौलत से लाया नहीं उनको। तो वही फरमाते हैं कि अल्लाह फरमाते हैं कि सिर्फ रास्ता मांग लिए चलता नहीं, कौन से रास्ते पर चलना वो भी मांगो मेरे से। सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता अल्लाह जिन पर आपने इनाम फरमाया। और इनाम कितने लोगों पर फरमाया अल्लाह? 4 लोगों पर, अंबिया, सिद्दीकीन
शुहदा और सालिहीन। किन लोगों के रास्ते पर नहीं? गैर मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, जिन पर अल्लाह का गुस्सा हुआ वो भी नहीं रहना, जो रास्ते से हट गए उनके रास्ते पर भी नहीं। यानी वो लोग अंबिया सिद्दीकीन शुहदा सालिहीन, इनके ऊपर अल्लाह गुस्सा भी करे नहीं और अल्लाह इनको रास्ते से हटाया भी नहीं। हटाया क्या अल्लाह? इनके ऊपर गुस्सा हुआ क्या? अल्लाह नहीं हुआ और इन रास्ते से हटे भी नहीं, अल्लाह इन लोगों के रास्ते पर चला। दूसरा मतलब यह है कि अल्लाह जिन लोगों का गुस्सा तेरे ऊपर हुआ, जिन लोगों पर तेरा गुस्सा हुआ, अल्लाह उनके रास्ते पर भी चलाना को। जो लोग रास्ते से हट गए अल्लाह उनके रास्ते पर भी चलाना को। तो अल्लाह मुस्तकिल सूरह फातिहा इसलिए फरमाते हैं कि सूरह फातिहा की नज़ीर पूरे कुरान में नहीं, तौरात में नहीं, ज़बूर में नहीं, इंजील में नहीं। सूरह फातिहा की शानी चलक अरे वह सब में, और हर बीमारी के लिए शिफा। सूरह फातिहा क्या है? हर बीमारी के लिए शिफा है। तो ये चंद बातें थी। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सही मानों में ईमान नसीब फरमाए, सही मानों में यकीन नसीब फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला आखिरी सांस तक कुरान से जुड़ने की, कुरान को सीखने की और सिखाने की तौफीक अता फरमाए। तो अब बंदा बोल दिया इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। तो बंदा पूछा, अब अल्लाह शुरू कर रही अलिफ लाम मीम, वो हिदायत का रास्ता क्या, वो सिरात मुस्तकीम का रास्ता क्या, जिन पर अल्लाह इनाम फरमाया सका। अब वो शुरू हो रहा है अलिफ लाम मीम दालिकल किताब सूरह बकरा से। इंशाअल्लाह ज़िंदगी बाकी तो बात भी बाकी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बड़ा संगम है ये इल्म और अनवारे नबूवत का, यहाँ से फैज़ मिलता है शरीयत का, तरीक़त का, दुकाने